My name's Aisha Rashid and I've recently switched to yoga. I've always done gym or walk kiye, physical activities baki kiye, but yoga was something I For was me, not it's very not the place of passionate. exercise. For me, it's the place to get peace, calm, and positivity every day. सालों से योगा कर रही हूँ and it has helped me forget all the tensions of life and All the office. credit goes to the trainer Farah. I can't tell you, there's a lot of peace and serenity in her voice. जो फरा का पीसफुल स्टाइल है, कितनी रिलैक्सेशन हम यहाँ फील करते हैं, सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली तौर पर भी बहुत रिलैक्स होते हैं हम यहाँ से जाते हैं। हम एक वर्किंग जो यहाँ मौजूद हैं, आई नो आप गलत ब्रीथ कर रहे हैं। अच्छा नहीं तो आप हमें भी जरूर बताइएगा। चलें हम हाँ मेरे पास हाँ वीडियोस देख के ही योगा मत करें, क्योंकि जैसा कि माजी में हमें पता है कि कोरोना के दिनों में जो जिन लोगों ने यूट्यूब से देख के MBBS किया है वो आज ऑपरेशंस करने के काबिल नहीं। My name's Aisha Rashid and I've recently switched to yoga. I've always done gym or walk kiye, physical activities baki kiye, but yoga was something I was not very passionate about. I got introduced to yoga and how yoga helps you and your body, not just your body. I think your overall life yoga आपको कैसे बदलती है by watching my sister do it. And the shift that I've seen in her personality and the way she lives her life has been that one turning point where I thought I should do it. So, my name is Fariha Alvi, and I have been doing yoga with Farah since a while. And I am very happy and grateful to be the part of this yoga class. For me, it's not the place of exercise. For me, it's the place to get peace, calm, and positivity every day. I do yoga. So, as far as Farah is concerned, as a teacher, there is something truly special about her presence. Her vibes and energies are so positive and magical that is a game changer in your life. At least in my life, it's a game changer. जी मेरा नाम मारिया डोडी है। मैं 2 सालों से योगा कर रही हूँ and it has helped me forget all the tensions of life and office and work. It reminds me to keep on breathing, सांस लेते रहना है, काम चलता रहेगा, साथ साथ ज़िंदगी चलती रहेगी, लेकिन सांस लेते रहना है साथ साथ। So it's been a great experience overall. Thank you. Hello, this is Rahima. I've recently joined Healing Yoga with Farah. My experience had been incredible. It has not only helped me physically, but also professionally. I'm more focused. It has taught me that I should be calm, I have to slow down, and all the credit goes to the trainer Farah. I can't tell you, there's a lot of peace and serenity in her voice. Only her voice can take me to emotional highs. I'm glad that I have taken this step for myself, for my healing, and joined this session. Thank you. अच्छा, और मैं ज़रूर सबको इनकरेज करूंगी कि ये सेशन अटेंड करें। अगर आपको अपने आप से प्यार है और आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं तो हीलिंग योगा विद फरा से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अनीला नदीम। मैं बहुत टाइम से फरा विद हीलिंग योगा के साथ योगा कर रही हूँ और मैंने और भी बहुत सी जगह पे ट्राई किया, लेकिन जो फरा का पीसफुल स्टाइल है, जितनी रिलैक्सेशन हम यहाँ फील करते हैं, सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली तौर पर भी बहुत रिलैक्स होके हम यहाँ से जाते हैं। मैं एक वर्किंग लेडी हूँ और मैं ऑफिस से पहले जब यहाँ आती हूँ, यकीन माने यहाँ के 1 घंटे के सेशन में मैं ऑफिस जाके इतनी एनर्जेटिक हो जाती हूँ कि मुझे होल डे काम करना मुश्किल नहीं लगता। और सिर्फ फिज़िकली नहीं, मेंटली रिलैक्सेशन के लिए मैं तमाम लेडीज़ को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ज़रूर योगा क्लासेस ज्वाइन करें। जो पॉसिबल है फ़रा के साथ ज्वाइन करें। उसके अलावा भी हर बंदी की ज़िंदगी में योगा ज़रूर होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोशल नंबर 1 योगा। जैसा कि हम लोगों को पता है और आप लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान में लाखों लोगों को तो पता ही नहीं है कि योगा क्या है। आज हम एक माहिर एक्सपर्ट ट्रेनर के पास मौजूद पूछते हैं कि योगा क्या होता है, इन्होंने कब से स्टार्ट किया, क्या लाइफ जर्नी थी और योगा के फ़ायदे और नुकसानात क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी विद यू। और ये बड़ा अच्छा आपने पूछा कि योगा है क्या, बिकॉज हमेशा से आई वांट टू टेल पीपल कि योगा है क्या। और जहाँ तक मेरे जर्नी का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन
for years in this field और आप पूछ रहे हैं कि फ़ायदे क्या है, तो फ़ायदे तो अनगिनत हैं, जो कि ये फिज़िकल लेवल पे काम करती है, मेंटल लेवल पे आपको काम करती है, रिलैक्स करती है, फिर आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे काम करती है। तो ये बड़े अच्छे तरीके से आपकी वेल बीइंग पे काम करती है। मुझे इसके बहुत फ़ायदे हुए हैं। मुझे कहना चाहिए कि बचपन से मेरा पैशन भी था, जो कि सब कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो ये बचपन से अल्लाह ताला चीज़ डाल देते हैं, अगर वो आगे जाके आपका काम बन जाए, आपकी जॉब बन जाए या आपका करियर बन जाए, तो यू आर वेरी लकी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला, मैंने ट्रेनिंग्स ली, कोई इधर से, कोई पाकिस्तान से बाहर से ली ट्रेनिंग, बल्कि मुझे जहाँ भी मौका मिलता है आई लर्न फ्रॉम एवरी टीचर फ्रॉम एवरी प्लेस। तो मैं पाकिस्तान में हमारी जो ख़वातीन हैं इनकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और ये दे आर लिविंग विद द पेन। ये समझते हैं कि ये ऐसे हो रहा है तो हो ही रहा है, अब क्या करें, अब बच्चे हो गए, ये हो गया, वो हो गया। आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, फिर आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हैं। एंड योगा इज़ सो एक्सीलेंट फॉर मी। आप पूछ रहे हैं कि योगा है क्या? वेल योगा जिस लफ्ज़ से निकला है उस लफ्ज़ का मतलब है यूज, संस्कृत का वर्ड है, एंड दैट मीन्स वननेस, यूनिटी। सो लोगों को मैं यही बताती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स खास तौर पे जो आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे गो ऑन अ मेंटल लेवल कि दिस इज़ यूनिटी, वननेस ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। Another level is of your mind, body and heart. The next level is of your mind, body, heart and spirit. तो इसका हाईएस्ट गोल है स्पिरिचुअल पाथ। हम लोग जहाँ यहाँ पे कराते हैं, ऑफ कोर्स हम फिज़िकली बहुत ज़्यादा करवा रहे होते हैं, बट वी गो फ्रॉम फिज़िकल लेवल अप टू मेंटल लेवल। लाइक हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्दन में, शोल्डर्स में दर्द होता है बिकॉज ऑफ बैड पॉस्चर्स, बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल। हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अब आम है हर एक को। दैट इज़ कि वो जो स्ट्रेस होता है और फिर बैड पॉस्चर्स होते हैं, वो आपके मसल्स को स्टिफ करते हैं और फिर आपकी नेक में, शोल्डर्स में दर्द हो रहे हैं। तो हम फिज़िकल लेवल पे उसको पहले आपको एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग, मेडिटेशन करके, यहाँ से रिलैक्स करके, फिर हम मेंटल लेवल पे आपको रिलैक्स करते हैं। मैडम ये बताइए कि जो योगा है वो किस एज के लोग कर सकते हैं? सबसे अच्छा जो योगा मुझे मौका मिला, मैंने बच्चियों के साथ बहुत काम किया है। हम लोग समर स्कूल लगाते थे ऑफ योगा बच्चियों का। वैसे तो हर एज का बंदा ये कर सकता है, हर एक अपने लेवल के मुताबिक करता है, बूढ़ा भी कर सकता है। हम चेयर योगा कराते हैं, आपके अगर स्टिफ हैं जॉइंट्स, हम उन पे काम करते हैं, मसल्स पे काम करते हैं, यंग वंस पे काम करते हैं। मुझे जो इतने तजर्बे में हासिल हुआ वो ये कि बच्चियों को इतना अच्छा, जितना अच्छा रिजल्ट मैंने बच्चियों के साथ लिया ना, वो मैंने किसी के साथ नहीं लिया। इसलिए कि शायद यू कैन से कि उनकी वो बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब करती हैं, बड़ी जल्दी शायद उनकी मसल्स जो हैं वो आ जाते हैं वापस अपनी शेप पे, जो नेचुरल है। तो अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, बेटों को ज़रूर कराएं, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है फ़ोन्स का एंड ऑल दैट, यू नो, जो हमारे बच्चे जिस दौर में से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर खाम खा की एंग्जाइटी है। इवन बच्चियाँ आती थी जो एंग्जाइटी के साथ, एंग्जाइटी ऑफ द स्कूल, 8 साल की बच्ची आ रही है, 6 साल की बच्ची आ रही है, एंग्जाइटी ऑफ द स्टडी, दे आर वॉमिटिंग, दे डोंट वांट टू गो टू स्कूल, इस तरह की चीज़ों के साथ। तो मैंने ये देखा कि उनके लिए योगा ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैडम ये भी बताइए जो योगा है, ये सारी एक्सरसाइज करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? क्योंकि हमें पता है कि आजकल टाइम तो है ही नहीं किसी के पास। देखिए 1 आवर इफ़ यू डू 4 डेज अ वीक, 4 डेज अ वीक इज़ इनफ। अच्छा अच्छा। क्योंकि उसमें हमारी सबसे पहले हम ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग हमें सिखानी पड़ती है। एवरी आप लोग भी जो यहाँ मौजूद हैं, आई नो आप गलत ब्रीथ कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, तो आप हमें भी जरूर बताइएगा, चलें हम हाँ भी मेरे पास, योगा हाँ की जो भी प्रैक्टिस। आए हैं मैं सबसे पहले बताती हूँ, मुझे ब्रीथ करके दिखाओ, तो वो उल्टा ब्रीथ कर रहे हैं। क्योंकि यू आर सपोज टू, व्हेन यू आर इनहेलिंग, तो आप यू आर सपोज टू डू कि आपकी बेली शुड कम आउट, राइट। और व्हेन यू आर एक्सहेलिंग तो बेली ब्रेथ हम इसको कहते हैं। आसानी के लिए मैं लंग्स या किसी और चीज़ का नाम लेती, बेली शुड गो इन। तो जो भी आता है वो उल्टा लेता है, इनहेल के साथ बेली भी इन करते हैं, एक्सहेल के साथ। सो आप अपनी लंग्स को जो है और ज़्यादा स्क्वीज़ कर देते हैं, बजाय इसके कि वो और ऑक्सीजन लें, अब उनको और स्क्वीज़ कर देते हैं कि चलो जी तुम्हें जो थोड़ी सी भी आ रही है उसको भी और थोड़ा कर दो। सो मोस्ट ऑफ द पीपल, बच्चों को, बच्चियों से, लड़कियों से, लेडीज से
हम ये सबसे पहले सांस लेना सिखाते हैं। राइट। ब्रीदिंग को हम देते हैं 5-10 मिनट लाजमी। फेस योगा से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी डू हर मसल हर जॉइंट के ऊपर काम करते हैं एंड देन आखिर में हमारी रिलैक्सेशन और मेडिटेशन होती है। सो इट्स 1 hour 10 minutes जो कि मोर देन एनफ है। और मैम ये भी बताइए कि आजकल के मसरूफ़ दौर में क्योंकि हर बंदा जो एक बड़ा मसला है वो एक मुआश का मसला है। हर बंदा जिस मर्जी लेवल पे है, जिस मर्जी क्लास से ताल्लुक़ रखता है, वो अपने फाइनेंस को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बताइए कि आम बंदा या हर पाकिस्तानी या हर इंसान अपनी डेली रूटीन से किस टाइम वो योगा कर सकता है और कौन सा टाइम जो ज़्यादा सूटेबल होता है? देखिए बेस्ट टाइम तो होता है मॉर्निंग का। जैसे अभी हम हमारी क्लास यहाँ 10 o'clock को 10:20 पे होती है और वो बहुत बेहतरीन काम टाइम है, इसलिए कि हम पूरी एनर्जी दे के भेजते हैं लेडीज़ को। उसके बाद सारा दिन फ्रेश होके एनर्जी के साथ वो काम कर रही हैं। लेकिन कुछ लोग जो कि मजबूर होते हैं, ऑब्वियसली ऑफिस में होते हैं, उनके लिए 6 to 7 सही है। एंड देन वीक डेज में वो अपने लिए ज़रूर, ख़ास तौर पे वर्किंग लेडीज़, दे आर फुल ऑफ एंग्जाइटी, दे आर फुल ऑफ स्ट्रेस, दे आर फुल ऑफ प्रेशर्स, क्योंकि वो ऑफिस की भी लेती हैं, घर की भी लेती हैं जिम्मेदारी। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है एटलीस्ट वीकेंड्स पे 2 दिन अपने लिए निकाल लें। तो उसमें हम उनको फुल रिलैक्स करके भेजते हैं घर उनकी, क्योंकि वो जो अपने शोल्डर्स पे अपने बोझ लेके फिर रही हैं, वो उनकी सेहत को बहुत ख़राब कर रहा है। एंड दे डोंट, आई मीन आई एम सॉरी टू से, हम पाकिस्तानी लेडीज़ अपनी हेल्थ का इतना ख्याल नहीं रखती, हम सब का ख्याल रख लेती हैं, अपनी बारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये आपको बताऊं कि मुझे सीखने का अल्लाह ताला ने बहुत मौका दिया और ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो मैंने हासिल किए। कुछ मुझे नेपाल स्कूल ऑफ योगा एकेडमी से, देन यहाँ पाकिस्तान में योगा वेलनेस से, एंड देन बाहर गई तो मैंने बाहर से भी कोर्सेज़ किए और हर जगह से कुछ ना कुछ का स्टिल आई एम लर्निंग। अगर मुझे जहाँ से जो मौका मिलता है आई लर्न। मुझे अभी भी पढ़ना पड़ता है, मैं अपनी सारी बुक्स को बार बार पढ़ती हूँ। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब जाओ योगा करने या एक्सरसाइज करने, तो आपको ये पूछना चाहिए कि इस जो मेरा टीचर है या जो मुझे करवाने लगा है, ट्रेनर। वो ट्रेनर है, इज़ ही एक्सपर्ट, इज़ शी सर्टिफाइड और नॉट। तो क्योंकि सर्टिफाइड जो होगा ना, वो आपको बहुत देखभाल के हाथ लगाएगा। आपने अपनी बॉडी उनके हाथ में देनी है, अपनी हेल्थ उनके हाथ में देनी है, हाउ टू ब्रीथ, वेयर टू गो, व्हाट टू डू। तो वो सीखने के बाद आपको बहुत अच्छे से पता चलता है। आई स्टिल रीड ऑल माई कोर्स बुक्स, आई स्टिल गो एवरी प्लेस जहाँ से भी मुझे सीखने का मौका। मैडम ये वैसे बड़ी हैरानगी की बात है कि आप मतलब इतनी एक्सपर्ट होने के बाद भी आप सीख रही हैं, ये अच्छी बात भी है। आप ये बताइए कि आपने टोटल कितना अरसा पहले ट्रेनिंग्स की और फिर आपने लोगों को ट्रेन करना शुरू किया? मैंने पहले सबसे पहले जो वो ट्रेनिंग थी मेरी, तकरीबन हम उसको कहते हैं, हम आवर्स में बताते हैं, राइट? आपको एटलीस्ट 200 आवर्स करने पड़ते हैं। फिर एक और दफ़ा 200 आवर्स किए, फिर 500 आवर्स आपके जब पूरे हो जाते हैं और उसके लिए मैं बाहर गई, मैंने अपने वहाँ से कोर्सेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन मोर देन 500 आवर्स। और उसके बाद आपका नाम भी रजिस्टर होता है। तो मेरा नाम भी रजिस्टर है इन द वर्ल्ड एज अ योगी टीचर कह लें या योगी एक्सपर्ट। सो आप गूगल करें तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा टीचर जो है वो सर्टिफाइड है या नहीं है। एनीवे आप बहुत अच्छे अच्छे पाकिस्तान में टीचर्स हैं, सम रजिस्टर नहीं कराते, लेकिन आई एम रजिस्टर्ड। मैडम लास्ट पे ये बताइए ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें योगा के हवाले से कि लोग आप तक कैसे रीच कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को कैसे जो है डिफरेंट किस्म के जो ट्रबल्स हैं, मुश्किलात हैं, वो उनसे आसान कर सकते हैं? वेल देखिए, ये जो हमारा दौर है ना, ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से भरा हुआ है। गैजेट्स हैं, बच्चों को पैदा होते साथ ही हम गैजेट्स दे रहे हैं। और अभी मैंने जैसे बताया कि सबके शोल्डर्स और नेक, तो आगे पता नहीं अगली नस्ल का क्या हाल होना है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपनी लाइफ में, अपने दिन में हर रोज़ गिव एटलीस्ट हाफ एन आवर टू योरसेल्फ, राइट? योगा करें, आप स्ट्रेच करें, अपनी बार बार अपनी बॉडी को खोलें, उसके अंदर इनहेल करें, एनर्जी लेके जाएं, अपने आप को खुद से हील करें। और उसके बाद 20 मिनट्स आप दे रहे हैं, जॉयफुल होकर गुजारें। इवन इफ़ यू आर वॉकिंग, इवन इफ़ यू आर डूइंग योगा, कोई एक्सरसाइज करें, अपने आप को जॉयफुल होकर ये टाइम दें।
अच्छी सी ब्रीदिंग करें और आखिर में 5 मिनट के लिए, लास्ट मेरे ख्याल 5 मिनट कह रही हूँ, एटलीस्ट 10 मिनट्स होने चाहिए, आपने मेडिटेशन ज़रूर करें। और मैडम लास्ट पे ये भी बता दीजिए कि जो योगा है वो क्या हमेशा किसी ट्रेनर के पास ही आके करना पड़ता है या इंसान सीख के खुद भी कर सकते हैं? देखिए बहुत ज़्यादा कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप अंडर द टीचर ही करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग जी। टेक्निक्स हैं जो मैं देखती हूँ यूट्यूब पे है, वो पढ़ने के बाद मुझे पता चलता है कि वो इतनी अच्छी नहीं है, कि सूटेबल नहीं है, कोई भी बिल्कुल। शुरू कर देता है, जी। कोई सी भी ब्रेथ शुरू कर देता है, वो कुछ हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए अच्छी नहीं होती है, एंड इफ दे आर गोइंग फॉर दैट, वहाँ पे वो ऐसा बताते हैं कि वो जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। कि आपको यू शुड सी योरसेल्फ, किसी से आप टीचर से आके बात करें, हफ्ते में 2 दिन क्लासें लें, टीचर के मशवरे से आप 2 दिन, मैं अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क देती हूँ घर के लिए कि तुमने ये करना है अपने घर में, बिकॉज यू आर नॉट कमिंग, तो घर में आप ये 2 दिन कर लो, तो उससे ज़रा अंदाज़ा हो जाता है कि क्या करना है। हाँ बिल्कुल, मैडम ने बड़ी अच्छी बात कही कि सिर्फ यूट्यूब से ही लर्निंग करके या यूट्यूब की वीडियोस देख के ही योगा मत करें, क्योंकि जैसा कि माजी में हमें पता है कि कोरोना के दिनों में जो जिन लोगों ने यूट्यूब से देख के MBBS किया है वो आज ऑपरेशंस करने के काबिल नहीं है और उनके पास नहीं जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।